आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज़, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। The passengers are requested to please fasten your seatbelts. The flight is going to take off. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Geeta. And I am Karthik. Welcome you all. On behalf of Captain R.K. Das sir and First Officer Mrs. Tapti Das ma'am on Speedwing Airways. So I request you to please fasten your seatbelts and be ready to enjoy, have, relax on Grillex. स्वागत है आप सभी का एज अ मेहमान। तो प्यारे जूनियर्स, आपका करते हैं हम दिल से स्वागत। तो देवियों और सज्जनों, मैं कौशल और मैं संजीता आज सभी का स्वागत करते हैं हमारे कप्तान मिस्टर आर.के. दास सर और हमारे सह कप्तान मिसेस ताप्ती दास मैम की तरफ से आप सभी का स्पीडविंग्स एयरवेज में स्वागत है। तो करते हैं हम अपना कार्यक्रम का शुरुआत एक बेहतरीन संगीत के साथ। So now let's welcome our singer Miss Shaista and Miss Roshni for their performance. सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहा था ये लो गया। झटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। ये बादल पे पाँव है या झूठा दाव है, अब तो भाई
चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या झूठा दाव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। ओ हो ओ जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल न लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय, जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय, जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। थैंक यू। Thank you guys. Life is incomplete without company. So that's why our captain also needs a co-pilot, and by co-pilot I mean to say Speed Wings principal Miss Tapti Das ma'am, who will come on stage now to say a few words. Request you ma'am, please. So, ready for takeoff? Yes, so you have to say yes, yes, yes. Then we will ready for takeoff. Okay? Again, ready for takeoff? Yes. First years, ready for takeoff? Yes. Very good. The sky is not the limit, it's just the beginning. The sky is not the limit, it's just the beginning. A very good afternoon to you all present here. Mr. R.K. Das, Director of Speed Wings Aviation Academy, Port Blair. The most talented lecturers, Mrs. Ruchi Rajput and Mr. Shahid Abrar, and our course counselor, Ms. Sarika. Our beloved senior students, all media person, and today's special guest, our freshers. Give a big hand to welcome our freshers. I welcome you all as the name of freshers, giving best wishes for your highest, brightest future. Work hard and study smart, believing yourself. Never forget your path, enjoying time without moving your mind. You will get the opportunity to success your life. सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है. I must congratulate to you all to select the best institute in the city. It is known fact that we have a dynamic management,
motivated and devoted lecturers. We taught in a beautiful environment. The course is IATA certified, accredited by DGCA, NSDC and AASSC. You have stepped into this institution with fresh thoughts, noble aims, high hopes and aspirations. I assure you that your ambitions will be accomplished by the successful guidance of our beloved lecturers. The flag of Speedwings Aviation Academy is hosting in every nook and corner of our state. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। Stay hungry for knowledge, be humble in your success. Stay hungry for your knowledge, be humble in your success and never stop chasing your dreams. Thank you and welcome you again in our family. Kind and encouraging words. Now we would like to call our in-flight supervisors, Mrs. Ruchi Mehta Rajput and Mr. Syed Abrar, and our customer service executive officer, Miss Sarika, to come onto the stage one by one to share their experience with all. Hello, good afternoon everyone, respected director sir, principal ma'am and my dear students. तो आप तो सभी मेरे को जानते ही हैं, मैं हूँ सारिका, कोर्स काउंसलर ऑफ स्पीडविंग्स एविएशन एकेडमी। तो करती हूँ स्वागत आपका अपने इस परिवार में। तो मेरा काम होता है स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस देना, उनको करियर में उनकी हेल्प करना, उनको सही दिशा देना। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, तो आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, आप मुझसे डायरेक्टली ऑफिस आवर्स में आके मिल सकते हैं, बता सकते हैं। आपके सारे प्रॉब्लम्स को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम यू ऑल in the family of Speedwings Aviation Academy. Thank you. Good afternoon, everybody. Good afternoon, our captain and our co-pilot, director sir, Mr. R.K. Das, and Tapti ma'am, our Speedwings principal. First of all, I would like to thank these two important people of Speedwings Aviation Academy. Because of them, you all are sitting over here. So huge round of applause for them first. देखिए अब मैं अपने पे आती हूँ। मेरा नाम है रुचि मेहता राजपूत। ये चेहरा आप याद कर लीजिए क्योंकि ये पूरे साल आप लोगों को देखना है। एंड मैं आपको पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं हूँ एक्स कुवैत एयरवेज क्रू। मैंने 7 साल कुवैत एयरवेज के साथ काम किया है, फ्लाई किया है। जब मैं यहाँ पे आई और जब मैंने यहाँ पे स्पीडविंग्स एविएशन एकेडमी खुल रही है उसका पोस्टर देखा तो आई थिंक दास सर से ज़्यादा शायद खुश मैं थी क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरी मीटिंग हुई दास सर के साथ। वो अलग कहानी है, मतलब दास सर कहने के लिए तो मेरे पड़ोसी हैं, बट देन बहुत दूर से कोचिंग हेड ऑफिस से मुझे उनको पहले कांटेक्ट करना पड़ा। फिर उन्होंने दास सर को मेरा नंबर दिया, फिर दास सर ने मुझे फ़ोन किया। मतलब पर चलो वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, पर बहुत अच्छे आए। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। अभी 6 महीने हो गए हैं मुझे। मेरे फर्स्ट ईयर्स जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे हैं, वो इस बात का एक्चुअली प्रतीक है कि कैसे स्पीडविंग्स एविएशन अभी चल रहा है। उसका छोटा सा हिंट आज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज जो ये कॉन्फिडेंस आप उनमें देख रहे हैं ना, यही कॉन्फिडेंस मुझे आप में लाना है। इनमें से कोई भी लोग आई डोंट थिंक सो 6-7 महीने पहले यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर इतने कॉन्फिडेंटली बात कर सकते थे। तो यही सब चीज़ें, यही जो डर, जो स्टेज फियर है ना आप लोगों के अंदर, यही मुझे निकालना है। मेरा काम भी यही रहेगा। आप लोगों की ग्रूमिंग पे, आपकी पर्सनालिटी पे मुझे अपना 1000% देना है। सर को 100% पसंद नहीं है, सर को 1000% देंगे, बोलेंगे तो 100% मिलेगा। Once again, thank you all of you, my students, the old one and the new one, for coming here today. एंड यहाँ से आगे का जो सफ़र है आप लोगों का और ज़्यादा मज़ेदार होने लगा है, होने जा रहा है।
अपनी प्लीज़ अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियाँ जितनी टाइट हो सके बांध के रखना. ओके, थैंक यू सो मच. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सब सोए हैं. फ्रेशर्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन. यार, नाउ इट साउंड्स गुड. कैसे हैं आप लोग? अच्छे नहीं है? रिफ्रेशमेंट मिला था? वेलकम जूस, वेलकम ड्रिंक मिले? ओके. सो मेरा नाम सैयद अबरार है. मैं यहाँ पे आप लोगों का ग्राउंड हैंडलिंग का कोर्स का पार्ट जो भी है वो मैं पढ़ाऊंगा. एंड मेरी जो एविएशन एक्सपीरियंस है, मेरा जो बैकग्राउंड है, एक्चुअली ये मेरा एविएशन का जर्नी स्टार्ट हुआ था 2018 में, जबकि एविएशन का ए भी पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार आइलैंड में कोई नहीं जानता था. एंड कुछ दिन पहले की बात है, मैंने दास सर को बोला कि सर आप कहाँ थे 2018 में, आपने क्यों ये एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन का जो इंस्टीट्यूट आपने स्टार्ट नहीं किया. देखिए, नाम के लिए एविएशन इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी चीज का ऑथराइज होना, लाइसेंस होना, जो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन, प्रॉपर लाइसेंस दे सके, वो एक होने में डिफरेंस होता है. एक पर्ची कोई भी आपको पकड़ा देगा, राइट? कोई पर्ची दिया, ये लो, ये आपका सर्टिफिकेट है. लेकिन अगर किसी ऑथराइज लोगों से अगर आपको पर्ची मिलती है, सो दैट विल बी एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन, इजंट इट? This is not for the only for freshers but also for the seniors, because वो लोग अभी जानते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. वो एक लोगो आप लोगों को दिख रहा है, IATA. कितने लोगों को ये आईटा का फुल फॉर्म पता है न्यू में? ओके, 1 2 आई थिंक 2022 है. नो इश्यूज. नेक्स्ट जब इवेंट होगा ना, जो भी इवेंट होगा, ये आईटा का अगर मैं फुल फॉर्म पूछूंगा तो सभी का हाथ जरूर उठेगा, बिकॉज वो आईटा, ICO ये हमारे माँ बाप है. They are the godfather of our aviation industry. ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ये हाल उनका भी था, बट अभी जो है they are aware about everything. So we will be going through with those things. जैसे कि रुचि मैम जो है आप लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग का पार्ट लेंगी. उसी के पैरेलली मैं आप लोगों का ग्राउंड हैंडलिंग, रैंप हैंडलिंग एज वेल एज पैसेंजर हैंडलिंग, पैसेंजर को कैसे हैंडल करना होता है इन द केस ऑफ आयरोप, एंड इन केस अगर पैसेंजर आपके ऊपर आयरेट हो जाता है तो आपको पैसेंजर्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है. अगर नॉर्मली हम अभी एक सिविलियन है, राइट? अभी आप लोग सिविलियन हो. जब तक आपके चेस्ट के पास वो बैच नहीं लगा था तब तक आप लोग सिविलियन थे, लेकिन अब वो बैच लग गया तो नाउ यू आर द पार्ट ऑफ स्पीड विंग्स एविएशन एकेडमी, राइट? स्पीड विंग्स मतलब स्पीड, विंग्स मतलब तेजी से उड़ना है आप लोगों को वो विंग्स के साथ, राइट? उड़ोगे ना? यस, उड़ना है. हम उड़ाएंगे आप लोगों को, जरूर उड़ाएंगे. तो हम वो सब चीज सीखेंगे कि हमें कैसे पैसेंजर्स को हैंडल करना है. उसका एक छोटा सा क्लिप जो है एक स्किट के तौर में हमारे आप लोगों के जो सीनियर्स हैं वो लोग करके दिखाएंगे कि कैसे एक पैसेंजर को छोटे से सिनेरियो में हमें हैंडल करना है, एक पैसेंजर को कैसे हमें डील करके उसे सर्व करना है. ओके, होप ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आप लोग अच्छे से रेगुलरली क्लासेस आओ और अपना सर्टिफिकेशन लो. And be thankful all the time to Mr. R.K. Das sir and Mrs. Tapti Das ma'am कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जैसे छोटे से शहर में लाकर सर्व किया है, ताकि आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल सके कि आप लोग भी मेनलैंड में जाकर लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको, राइट? कोई ये ना बोले कि जब अंडमान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए. होता है, इट हैपेंस, या स्टिल इट हैपेंस. लोग पूछते हैं कि अंडमान में क्या सेम नोट चलते हैं? अंडमान में तो यार सिर्फ जो SC/SCs रहते हैं वो लोग, आई थिंक सॉरी, जो जरवाज होते हैं वो लोग रहते हैं. नो, हम एजुकेटेड भी रहते हैं, राइट? हमें भी लोगों के सामने स्टैंड होना है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड, राइट? बाहर में भी जाके काम करना है, सिर्फ दूसरे काम नहीं. अगर हम लोग एविएशन इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस क्रू, अगर ये सब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो करेंगे ना? ऑफ कोर्स वी विल डू. ठीक है, so thank you all and once again welcome all of you. Stay hard and stay cool. चलो बाय. तो गाइस एक डाउट है, अभी तक जूनियर पैसेंजर को टर्बुलेंस फील हुआ है कि नहीं? अरे क्या नाश्ता नहीं करके आए? क्या आवाज ही नहीं आ रहा है? फ्लाइट में सब सोच के फ्लाइट में नाश्ता मिलेगा करके घर से नाश्ता नहीं करके आए ना? गाइस थोड़ा तो आंसर बताओ. मुझे भी वही लग रहा है बॉस. यार रिफ्रेशमेंट तो मिल गया, कुछ तो एनर्जी घुसा होएगा अंदर. यार एनर्जी ड्रिंक्स मिल गया है, रिफ्रेशमेंट मिल गया है, वेलकम ड्रिंक्स मिल गया, कुछ तो. यार टर्बुलेंस फील हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है ना?
आस्ते आस्ते देखो कितना टर्बुलेंस फील होने वाला है। तो पहला हम लोग टर्बुलेंस फील कराने के लिए एक रिक्वेस्ट है, टाइट सीट को टाइट से पकड़ लो, सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अब हमारे बीच आ रहे हैं आप सभी को टर्बुलेंस फील कराने के लिए एक डांस लेकर हमारे क्लासमेट्स। थैंक यू। एक एक करके कितना टर्बुलेंस फील होएगा सबको पता चलेगा। कितने जन है? 22 जन है ना, लिख के देता है 22 जन को बहुत ज्यादा टर्बुलेंस फील होने वाला है, सोच भी नहीं सकते हैं। अभी से ही सोच लो क्या होने वाला है। Now I would like to request our new passengers to unfasten your seat belts and come to the stage one by one and introduce themselves. तो गाइस सुनो ना, अगर अपना से आएंगे तो कुछ फायदा रहेगा। हेलो गाइस सुना, अगर अपना से आएगा तो कुछ फायदा रहेगा, बुलाना पड़ेगा तो फायदा भी जाएगा। तो कोई 3 जन अपना से आ जाओ, अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर हम लोग बुलाएंगे तो फिर वो फायदा भी गया और इतना टर्बुलेंस फील हो सोच भी नहीं सकते, लिटरली मजाक नहीं कर रहे। आ जाओ स्मिता। Good name please. Ruxana. Myself as Shravani. Myself Surajit. तो एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। Hello everyone. Good afternoon all of you. My name is Ruxana Yasmin and I am recently passed out my 12th class and I am super excited for my aviation journey. Thank you everyone. Hello ma'am and sir. Hello students. I am Shravani. Super excited to aviation industry में आया, बहुत अच्छा लगा और भी बहुत कुछ करना है लाइफ में, ये सब
ये स्पीड विंग्स के द्वारा बनना चाहती हूँ। थैंक यू। Good afternoon, respected sirs and my dear friends. मेरा नाम सुरजीत है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है। तो मेरा बचपन से शौक था कि एयरलाइंस में काम करना। तो अभी जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले पूछते हैं आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो हम लोग के पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। अभी ढूंढते ढूंढते मिला है इंडस्ट्री एविएशंस का। तो हर जगह मैंने पूछा था, पूछने के बाद यही जो है मेरे को बेस्ट लगा। गवर्नमेंट ऑथोराइज भी है, इसीलिए मैडम से बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी था, मैडम ने भी हेल्प करा है। तो इसीलिए मैडम को भी सबसे ज़्यादा थैंक्स। एंड हम चाहते हैं कि आगे इस इंडस्ट्री के साथ कोई ना कहीं जगह मेरे को पोस्ट मिले, कुछ कर सके, हम भी कुछ बता सके कि इस इंडस्ट्री बेस्ट है हम लोगों के लिए, हम भी सब लोगों को प्रूव कर सके इससे। थैंक यू फ्रॉम मायाबंदर। Good afternoon everyone. My name is Supriya Nayak. I am from सिपेघाट और मेरे को एविएशन बचपन से बहुत पसंद है और हमको इससे कुछ करना है करके, और ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता। और सारिका मैम ने बहुत अच्छे से समझाया मुझे भी और मेरे पेरेंट्स को भी, तो इसलिए मेरे पापा ने एग्री हुए। फिर हम तापसी मैम से बात करी तो मैम ने भी बहुत कुछ बताया और सिखाया। तो अभी मैं इसमें ज्वाइन करने जा रही हूँ। थैंक यू। My name is Ashmita Das and I am from Diglipur और मैं रिसेंटली 12th पास कर चुकी हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ जर्नी करने के लिए। थैंक यू। Good afternoon everyone. I am Anisha Khatun. I recently 12th passed out. I am very excited to joining the Aviation Academy. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Esijali Kumari and I am just passed out my school. I am very excited to join this Philippines Academy. Hi, my name is Shavik Mandal. I recently passed out my 12th and I am very happy to join the academy. Thank you. Good afternoon everyone. Hi sir. Hi ma'am. Myself Kavita. I am just passed my 12th. I am very happy and excited to take my journey through Speedwings Academy. Thank you. Hello everyone. Myself J. Avinash Kumar from Mayandar. I am very excited. I am very excited for the being part of Speedwings. Thank you everyone. Hello everyone, my name is Shamir and I am from Kanigappa. Thank you. Good evening everyone. My name is Aryan Maz. Good evening ma'am. Good evening sir. My name is T Baby and Fortel. Good evening everyone. My name is Madhumita Haldar and I am from Diglipur and I am very happy to hear and thank you. We would like to call lovable heart and captain of our flight, which I mean director of Speedwing Aviation Academy, Mr. R.K. Das sir. Yeah, very good afternoon all of you. Good afternoon sir. Wow, what a nice freshers party. The first time in Andaman Nicobar Island through one of the aviation institute. A nice organization. First of all, I welcome to all the new students to come over here, and you people are like a faith to our institute, Speedwings Aviation Academy, from every corner of Andaman Nicobar Islands, and also thanks to this organizer through Ruchi Mehta Rajput, the senior faculty of Speedwings Academy, and Mr. Syed Abrar, the faculty also in the Speedwings Aviation Academy, and Ms. Sarika, the course counselor. Today, actually, I am remembering this 30 years back in 1994. One of my friend also here, sitting over here, Mr. Anup Datta from New Sanghars. I think remembering this type of welcome party, the fresher party in Jen R.M. Desapka, Rajkiya, John Nehru Rajkiya Mahavidyalaya. In the year 1994, when I was a student in geography, at that time it was BA in geography. So 30 साल पहले का याद आ रहा है. What a wonderful party over there like that. तो आपको अच्छा लग रहा है आज का दिन? कैसा लग रहा है न्यू स्टूडेंट?
आज का थोड़ा अलग से सरप्राइज लग रहा है पार्टी में, एकदम फ्रेशर पार्टी, वेलकम पार्टी। तो दैट्स व्हाट थिंग्स लाइक दैट। वो साल जो है 1994 फर्स्ट टाइम पोर्ट ब्लेयर में आना, और जैसे आप लोग दिल्लीपुर से यहाँ पे आए पार्टी में, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जैसे अलग अलग व्हाट एंड ड्रेस, व्हाट एंड ग्रूमिंग। तो आपका भी ऐसा ग्रूमिंग हो जाएंगे अभी धीरे धीरे। तो एक इंटरेक्शन है आपका साथ में, हमारा स्टूडेंट्स है क्या चीज़, आप सब कुछ ऑटोमेटिकली सबको पता चलेगा, सब कुछ मैं डिटेल बताऊंगा अभी 2 मिनट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू नो सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा आपका रोडवेज होता है, सीवेज होता है, देन रोडवेज सीवेज में आपका और भी रोडवेज में ट्रेन का भी आपका जो मेट्रो भी आजकल है, बहुत सारे सोर्सेज। देन आप जो लेटेस्ट आपका कौन सा है, एयरवेज, यू नो एयरवेज। इसका अगर पहले अगर देखा तो एयरवेज को समझ, जैसा हमारे फैकल्टी मेंबर मिस्टर शायद अगर बताता एविएशन का इन द ईयर 2018 में ए का भी नहीं पता था व्हाट इज एन एविएशन। राइट नाउ विदाउट एविएशन नोबडी थिंक अबाउट दैट। कोई सोच सकता है आज एविएशन आज सबको नीड है आज। लाइक आपको अगर यहाँ से मेलैंड जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, या कलकत्ता, चेन्नई, केरला, कोची अगर जाना है, तो कौन सा ऑप्शन ढूंढेगा आप लोग? कौन सा ऑप्शन ढूंढोगे? फ्लाइट में जाओगे नहीं जाओगे, या शिप में जाओगे, या बस में जाओगे यहाँ से चेन्नई? कोई बस में जाने का है यहाँ से चेन्नई? सम ऑफ द माई ऑफिस इन मेलैंड दिल्ली या सम ऑफ द इन कोची में, जो अभी मैंने ट्रिप में गया था, बोला सर ये दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए बस का रूट है, उसका टिकट क्या है? तो मैंने रुक जाओ, आने वाला 100 साल का बाद में या कोई चेंजेस आ सकता है, वो अंडरग्राउंड हो सकता है मे बी और मे नॉट बी। ओके, तो आज का एयरलाइंस इंडस्ट्री बहुत आगे चला गया। एयरलाइंस यू नो एयरलाइंस, नंबर ऑफ एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। हाउ मेनी एयरलाइंस इन द वर्ल्ड यू नो? मोर देन 400 एयरलाइंस। बट जो आयटा आपने देखा है, आयटा व्हाट इज द फुल फॉर्म? आयटा इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन, जिसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। वहां से आपका यहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा अंडमान में। आप सोच सकता नहीं, कनाडा से सर्टिफिकेट यहाँ का बच्चों को मिलेगा, आईआईटी का सर्टिफिकेट। इज वेरी बिग है कि नहीं है? तो अच्छा लगा ये स्टूडेंट्स में ज्वाइन करके। तो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग जो आपका सामने खड़ा हूं मैंने, इज वेरी गॉड गिफ्टेड जो आपको इस एविएशन एकेडमी मिला है अंडमान निकोबार में। मिनिस्ट्री, वेरियस मिनिस्ट्री है यहाँ पर, पूरा इंडियन गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, मिनिस्ट्री फाइनेंस, मिनिस्ट्री अलग अलग है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जो है उनका अंडर में डीजीसीए होता है, वन गवर्नमेंट बॉडी। डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उनका अंडर पे आपका जो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है, आपका जो स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स है, नंबर ऑफ आपको मिलने वाला है आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग। आयटा, व्हाट इज एन आयटा? विदाउट आयटा नोबडी थिंक अबाउट द व्हाट इज एन एयरलाइंस इंडस्ट्री में। आइदर यू गो ऑन पायलट, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, जिसमें भी आपको अगर जॉब अपॉर्चुनिटी होने के लिए आपको आयटा का सर्टिफिकेट मैंडेटरी। फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज विदाउट सीटीटी पता है सबको, जो टीचर का जॉब के लिए जो मैंडेटरी होता है, सीटीटी सर्टिफिकेट बिना आपको नौकरी नहीं मिलेगा टीचिंग में। दैट इज सेम थिंग्स, विदाउट आईटा सर्टिफिकेट nobody will get the job, not only in Andaman Nicobar Airport but also in Indian Airport। इंडिया का जितना भी आपका हो या फॉरेन में हो, अब्रॉड में भी हो, विदाउट आईटा सर्टिफिकेट आपको जॉब बिल्कुल एयरलाइंस इंडस्ट्री में मिलने वाला ही नहीं है। यू आर पीपल लकी, फर्स्ट टाइम इन आईटा यहाँ पे अभी खुला है आपका लिए स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी। एविएशन आज का बहुत डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई हैव गॉन टू दिल्ली। I remember that when I come back to, I think 15th of this month, like June, 15th of June, when I was in IGI Airport, International Indira Gandhi International Airport जो आपको होता है ना, इंटरनेशनल जो आपका दिल्ली का एयरपोर्ट। दिल्ली में कौन कौन गया फिर? स्टूडेंट रेज योर हैंड। दिल्ली एयरपोर्ट देखा? कोई नहीं देखा? यहाँ पे न्यू स्टूडेंट, जो ओल्ड स्टूडेंट अकेले आप गए थे दिल्ली में। चलो, दिल्ली का जो टर्मिनल है ना, बहुत सारे टर्मिनल है, टर्मिनल 1, 2, 3 अलग अलग टर्मिनल में आपका बहुत सारा आपका जो गेट होता है। तो वहां पे इतना रश हो गया पहले से,
Before 5 years back, or in the year 2017 when I was in Delhi, मैंने देखा little bit passenger था. आज number of passenger increase हो गया. तो आप देखो not only दिल्ली but also in अंडमान निकोबार में we are very lucky. एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बड़ा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जो मुझे वेरी प्राउड फील होता है. इन ए ईयर वी हैव टू हैव 50 lakhs पैसेंजर यहाँ पे अब अकोमोडेट कर सकता हम लोग इस एयरपोर्ट में. 50 lakhs पैसेंजर आप सोच नहीं सकते हो अंडमान में इतना बूस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रहा है. तो एयरलाइंस का जो है आपका है बहुत सारे एयरलाइंस है जैसा मैंने बताया 382 एयरलाइंस का जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में मॉनिटर कर रहा है. आईटा नहीं कर रहा है. व्हाट द रोल ऑफ आईटा आपको पता नहीं होगा आईटा का क्या है. आज फ्रेशर पार्टी में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन यूं दे रहा है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन स्पीड विंग्स, व्हाट इज आईटा, व्हाट इज डीजीसीए, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो. तो आईटा का जो काम होता है सारा एयरपोर्ट का कोडिंग करना, एयरलाइंस का कोडिंग करना. फॉर एग्जांपल SG108 स्पाइसजेट का जो स्टार्टिंग कोडिंग होता है SG सुपर गोल्ड, उसका फुल फॉर्म क्या आता है सुपर गोल्ड. 6E1067 6E क्या नंबर है आपका इंडिगो का एयरलाइंस का कोडिंग होता है. AI549 एयर इंडिया चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर पता आपको. 451 फ्रॉम दिल्ली टू पोर्ट ब्लेयर AI एयर इंडिया. एयर इंडिया का भी बहुत सारे डिवीजन लग गया एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड एयर इंडिया. ये जो कोडिंग है एयरलाइंस का जो कोडिंग होता है 2 लेटर कोड. कितना लेटर कोड 2 लेटर कोड. और एयरपोर्ट का 3 लेटर कोड. ये जो कोडिंग को पूरा जस्टिफाई कर रहा है आईटा ने कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में. आप सोचो आईटा का कितना रोल है. आईटा और डीजीसीए पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है हमारा इंडिया का जितना भी एयरपोर्ट, जितना भी पायलट, जितना भी कैबिन क्रू, सबको पूरा इसी का अंडर मॉनिटरिंग कर रहा है. 2 यूनिट, एक इंटरनेशनल बेसिस में और हमारा इंडिया का जो है इंटरनल जो भी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में जो डीजीसीए जिसका डायरेक्टर जनरल हमारा है मिस्टर विक्रम देवदत्त जो वाज एन IAS ऑफिसर फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड. एनीबॉडी नोज अबाउट दैट विक्रम देवदत्त. और विक्रम एक देवदत्त मैडम थी उनका बेटा था. यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थी पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी था मिस्टर विक्रम देवदत्त. तो ऑथराइज्ड बाय व्हाट इज द ऑथराइज्ड आपका है स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी. फर्स्ट है 30 इयर्स इज एन प्रीमियम ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है. 30 इयर्स से हमारा ये स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी है. आईटा का ऑथराइज्ड ट्रेनिंग है ऑल ओवर इंडिया में. फर्स्ट CBTA ट्रेनिंग इंडिया का स्पीडिंग्स एविएशन एकेडमी है. फर्स्ट CBTA का मतलब है जो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो DGR ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है. व्हाट इज मीन बाय DGR? डेंजरस गुड रेगुलेशन. व्हाट इज डेंजरस गुड? व्हाट आर द आइटम यू कैन नॉट अलाउ इन द कैबिन, इन द लगेज आप ले नहीं सकते हो. इजंट इट? तो DGR का जो ट्रेनिंग दे रहा है अंडर DGCA के अंडर में. तो DGR का ट्रेनिंग 2 मिला के आईटा और DGCA मिला के DGR का ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो हमारा स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी ऑथराइज्ड बाय आईटा, DGR ट्रेनिंग बाय DGCA, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जिसका भी यहाँ पे बहुत सारा अवार्ड मिला स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी. देन AASSC एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड भी है. ये सारा अप्रूव्ड हमारा स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी फर्स्ट टाइम इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स जितना ऑथराइज्ड सर्टिफाइड स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी है. तो मैंने इसको लेके आने के लिए बहुत रिसर्च किया. मैंने करीब 1 ईयर लगा है. मैंने दिल्ली में विजिट किया है, मुंबई विजिट किया है, कलकत्ता विजिट किया है, बेंगलुरु में विजिट किया है, मैंने चेन्नई में भी देखा है. तो मुझे लगा अंडमान के स्टूडेंट के लिए इससे बड़ा और कोई एविएशन एकेडमी हो नहीं सकता है. ये बिग हैंड फॉर एंटायर जो भी है एविएशन एयरलाइंस जो यहाँ पे काम कर रहे हैं. इतना अच्छा से यहाँ पे अंडमान जो पॉपुलेशन को यहाँ से मेनलैंड का विदिन ए शॉर्ट 2 आवर्स दिल्ली यहाँ से जाने के लिए 3.5 मतलब मान लीजिए आपका 3 घंटा 40 मिनट 3 घंटा 50 मिनट में हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मिल रहे हैं. इतना एयरलाइंस यहाँ पे आ रहे हैं आने वाला टाइम में. देन आज का जो DGR ट्रेनिंग जो है आज पूरा स्टूडेंट्स एविएशन फर्स्ट DGR ट्रेनिंग इन इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट को मिला है. एक है हाई फ्लाई इन गुड़गांव में और एक है स्टूडेंट्स एविएशन कोची में.
जो केरल में है। 2 इंस्टीट्यूट हैं। फर्स्ट जो ट्रेनिंग दिया है डीजीआर ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी। 3 ट्रेनर है इस डीजीसी का पोर्टल में। मिस्टर विजय पंत, सीईओ ऑफ एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी, मिस्टर गोपालन द ट्रेनर एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी, मिस्टर ब्रिजेश इज आल्सो ट्रेनर एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी। तो व्हाट आर द किसको अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग? डीजीआर ट्रेनिंग। डीजीआर ट्रेनिंग इज डिफरेंट। You people after getting the DGR training, you directly get the job in the any airlines company. आप कोई भी एयरलाइंस कंपनी में आपको जॉब मिलेंगे, क्योंकि 2 चीज होता है आपको एविएशन का जॉब मिलने के लिए। फर्स्ट है आईटा सर्टिफिकेशन और नंबर 2 है, अगर ये है सोने पे सुहागा, इसलिए बता रहा दैट इज एन बोनस, डीजीआर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आप समझे डीजीआर क्या है? ईच एंड एवरी जो एम्प्लॉय है सारा एयरलाइंस में, जैसा कैबिन क्रू हो, ग्राउंड स्टाफ हो, क्या पायलट हो, सबको एवरी 2 इयर्स के अंदर में डीजीआर का सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर मान लीजिए 10 साल से कोई एयर इंडिया में काम कर रहा है, मिस्टर शायद अब्रार आल्सो ही वाज ए स्टूडेंट फ्रॉम एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी। और एक यहाँ पे एएसएल का चीफ है, मैडम है, वो भी एक्सपीरियंस एविएशन के स्टूडेंट थी। ईच एंड एवरीबॉडी फ्रॉम एयर इंडिया एक्सप्रेस, एआईएसएल, सीआईएसएफ, पोस्टल, सबको डीजीआर ट्रेनिंग अभी एक्सपीरियंस एविएशन दे रहा है। ऑल ओवर इंडिया का आ रहा है, जो राजस्थान से आना, दिल्ली से आना, कश्मीर से आना, पंजाब से आना, गुजरात से जाना, कहाँ पे जाना? एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी जाना है। किसके लिए? डीजीआर ट्रेनिंग लेने के लिए मैंडेटरी है। अगर डीजीआर ट्रेनिंग लेंगे नहीं, डीजीसी ने डायरेक्ट एयरलाइंस को पेनल्टी मारेंगे, मोर देन करोड़ सीआर के ऊपर पेनल्टी मार रहा है। इसलिए सारा एयरलाइंस ने क्या कर रहा है, हर 2 इयर्स में अपने एम्प्लॉय को जो है डीजीआर ट्रेनिंग सर्टिफाइड करा रहा है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? देन दूसरा जो आपका व्हाट आर द कोर्सेज वी आर रनिंग इन पोर्ट ब्लेयर इंस्टीट्यूट में, जो ब्रांच है हमारे एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी में। फर्स्ट है डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, जिसका सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 है। आपको जब क्लास स्टार्ट होगा 8 तारीख, आई थिंक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, डे आफ्टर टुमारो, आपको उसका डिटेल्स बताए जाएंगे, क्या क्या कोर्स, क्या क्या उसका करिकुलम, सब कुछ बताएंगे। देन कैबिन क्रू का भी आपका कोर्स स्टार्ट कर रहा है, आई थिंक स्टूडेंट एडमिशन लिया भी है। आने वाला टाइम में बीबीए भी एविएशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो ग्रेजुएशन जो बच्चा कर रहे हैं वो डायरेक्ट बीबीए करके आप एविएशन भी कर सकते हो। 2 बैचेस राइट नाउ स्टार्टेड, आई थिंक हमारा प्लान है। दिस बैचेस स्टार्टेड इन द मंथ, आई थिंक जनवरी से स्टार्ट किया है। ये बैच कंप्लीट होगा दिसंबर में, और एक बैच स्टार्ट किया आप लोग आज जुलाई से। इनका बैच कंप्लीट होगा नेक्स्ट ईयर 2025 जुलाई में, और एक बैच स्टार्ट होगा दिसंबर 2024, और एक बैच स्टार्ट करेंगे। वी शुड हैव नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट पर बैच में 20 स्टूडेंट्स ही होना है। इसके लिए हमारा इंटर्नशिप का यहाँ पे परमिशन मिला है बीच सभा का एयरपोर्ट में। नॉट ओनली आई थिंक 3 to 4 days, मैक्सिमम 1 वीक का विंडो खोलेंगे। शायद इस मंथ में हम लोग इंटर्नशिप का कराएंगे। जो बैच है 6 मंथ चल रहे हैं उनके लिए विजिट भी होगा। इनके लिए अभी आपका जो सबसे पहला हमारा गुड लक है, अभी रिसेंटली एक न्यूज मिला, हम लोग अच्छा काम किया। गिव ए बिग हैंड फॉर सारिका मैडम फॉर गेटिंग द हॉस्टल फैसिलिटी। सबको हॉस्टल मिल गया है। जो बच्चा दिल्लीपुर से, कैम्बेलवे से, रंगत मायावदर वहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है पढ़ने के लिए, तो पोर्टल में आना है। इज अ वेरी लकी, विल गेट द हॉस्टल। ओनली 12 स्टूडेंट विल गैदर ओनली। उनके लिए आप भी हम मोर गैदरिंग कर लेंगे। वी आर फाइंड आउट द हॉस्टल के कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग जॉब, बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग हियर, आज जो बच्चा मेलैंड में जा रहा था एविएशन करने के लिए 1 ईयर के लिए, जो भी या 6 मंथ के लिए करने चाहिए, मोर देन 3 लाख, मोर देन 4 लाख रुपीस as fees charges by the Mainland Institute। आपको पता है विदाउट आईटा और डीजीआर तो है ही नहीं। वहां पे बैंगलोर में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कोई मुंबई जा रहे हैं, वो आपका पैसा बच गया। यहाँ पे आपको जो फीस चार्ज किया है एकदम नॉमिनल फीस है। अगर ये विदाउट आईटा, विदाउट डीजीआर ट्रेनिंग आप करोगे मेलैंड में, आप चेन्नई में जाओ। मैंने चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट से मेरे पहले 2-3 बार मीटिंग भी हुआ था। मैं उनसे पूछा, मैडम यहाँ का फीस कितना है? बोला सर अंडमान से बहुत बच्चे यहाँ पे आते हैं, बहुत बच्चा आता है। बोले फीस कितना चार्ज कर रहे हैं? 3.5, 3,50,000 फीस है, और वो आईटा है ही नहीं है। डीजीआर तो आप सोचो मत। मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता सकता है क्योंकि अलग अलग सब अलग अलग होता है,
बट ये फीस आपको यहाँ पे इतना कम है, अपना घर में रह के यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लेके आप लोकल एयरपोर्ट बोलो या आपने इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट में या ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी एयरपोर्ट में या एयरलाइंस इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलेगा, गारंटी है ये, क्योंकि सर्टिफिकेट आईआईटी का है। नेक्स्ट आपको जो बताना है व्हाट इज द हमारा फैकल्टी मेंबर जो है, अभी 2 फैकल्टी मेंबर हैं, मिसेस रुचि मेहता राजपूत जो उनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुकी है मैडम, और मिस्टर शायद अबरार। हमारा प्लानिंग है मोर फैकल्टीज विल कम फ्रॉम जो लोकल जो एयरलाइंस है या एयरपोर्ट है वहां से आने वाला है। और एक प्लानिंग है विद इन 3 महीना के अंदर में मेलैंड से केरला कोची का जो ब्रांच है वहां से फैकल्टी यहाँ पे आएंगे, 10 दिन 15 दिन का क्लास लेके जाएंगे। और जो लोकल जो फैकल्टी है अलग 2-3 घंटा का यहाँ पे और भी इनको एंगेज कराएंगे। और भी अभी जैसे लास्ट मीटिंग हुआ था कोची केरला में जिस प्रोजेक्ट में आई थिंक 10 दिन पहले का मीटिंग था हमारा, ऑनलाइन क्लास भी अरेंज करें, लाइव क्लास भी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फैकल्टीज, नंबर ऑफ करिकुलम इन एयरलाइंस इंडस्ट्री में आप सोच नहीं सकते हो, इतना सारा करिकुलम है। एक एयरक्राफ्ट को अगर टेकअप कराने के लिए बैकएंड में कितना सारा ऑडिटिंग, कितना सारा उनका काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कार्गो शायद आप लोग सोचते हो लोडिंग करना सामान, वो नहीं है। एक कार्गो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लगेज आप जा रहे हैं, लंदन में जा रहे हैं, उस कार्गो का बैगेज बनाना, टैग बनाना, स्कैनिंग करना सबसे बड़ा बिग जॉब हो रहा है। तो कार्गो का भी हो या सारा करिकुलम जो है, रैम का हो, टिकटिंग का हो, मे आई हेल्प यू हो, स्कैनिंग का हो, ईच एंड एवरीथिंग का आपका करिकुलम में आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस करने वाला हम लोग। एग्जामिनेशन का बात करना जैसा आपका है, आईआईटी एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन में एग्जाम होगा, आज सर्टिफिकेट ऑनलाइन में होगा, बट 1 सिंगल अटेम्प्ट होगा आपको, इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। नंबर ऑफ हम लोग अभी और एक गुड न्यूज है फॉर जो ओल्ड स्टूडेंट, अभी 6 मंथ हो गया, वी आर गोइंग टू केरला कोची स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी में जा रहे हैं। आई थिंक सितंबर मंथ में हम लोग टिकट लेंगे और जिसका टिकट का कॉस्ट को आई थिंक यू पीपल विल बी बियर, अप एंड डाउन का टिकट या खाने का रहने का जो भी है, वी आर गोइंग टू शॉर्टली दिल्ली पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, अभी वो भी हमारा दिल्ली पैरामेडिकल हम लोग 22 जुलाई को जा रहे हैं दिल्ली में, 2 दिन का ट्रेनिंग है। और हम लोग राष्ट्रपति भवन का भी हम लोग अब इसका बुक भी कर लिया है और वहाँ पे बाकी जो दिल्ली दर्शन करा के लगेंगे। 22 को जा रहे हैं, 26 को आ रहे हैं। अभी आने वाला टाइम में सितंबर में एविएशन के स्टूडेंट है उनको लेके जाएंगे, सितंबर में जितने स्टूडेंट हैं उनको लेके वहाँ पे इंटर्नशिप भी होगा। कहाँ पे? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, CIAL कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में ट्रेनिंग होगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 2 दिन वहां पे विजिट होगा, ट्रेनिंग होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा स्टूडेंट्स का मेन ब्रांच में। नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। आईआईटी का 2 सर्टिफिकेट है, एक है आईआईटी सर्विंग द ट्रैवल कस्टमर और एक है आईआईटी डीजे का और एक सर्टिफिकेट है। तो 2 सर्टिफिकेट आईआईटी का है, एक सर्टिफिकेट एमिड्यूस का है। अभी एमिड्यूस क्या है, यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उनका एमिड्यूस भी नहीं पता, डीजीआर नहीं पता, आईआईटी नहीं पता। दे आर रनिंग द इंस्टीट्यूट, they are doing their job, but what we are doing is our credential, our जो हमारा expectation, what the quality are going to the Andaman Nicobar student, वो हमारा ट्रस्ट है, हमारा कमिटमेंट है अच्छा करना, तो बच्चों का लाइफ भी अच्छा होगा। आपका सर्टिफिकेट मिलेंगे एमिड्यूस का, एक दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा एक लोकल BSI एयरपोर्ट से और एक सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप का कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलेंगे और एक सर्टिफिकेट मिलेगा NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कंट्री में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेंगे और एक साल का सर्टिफिकेट मिलेगा डिप्लोमा इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट को 1 साल का सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। तो आपका कल से क्लास मतलब मंडे से क्लास होगा। यू आर वेरी वेलकम टू आवर स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी। स्टूडेंट्स मतलब स्पीड में अपना विंग्स बढ़ाओ और जर्नी करो, नॉट डोंट थिंक रिमेंबर आवर लोकल एयरपोर्ट, आप अब्रॉड जाओ, एयरलाइंस अब्रॉड में काम करो और आप आपका अंडमान को रोशन करो। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Good afternoon. My name is Neha Haldar from Choldani and I am very excited to join this aviation academy. Thank you. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मधुमिता सरकार है और रिसेंटली मैंने 12 पास आउट किया है और मैं अपने एविएशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एक्सपीरियंस के हेल्प से। थैंक यू। Good afternoon all of you. Hi ma'am, hi sir. Myself DJ Bharti and I'm from Diglipur and I'm today very happy to join this. Thank you.
Good afternoon, ma'am, sir, and my dear friends. Myself, Pooja. I am completed my final year in Jayanaram BBA Tourism. और मैंने इंटर्नशिप भी की थी एयरपोर्ट में 45 डेज का. तब से मुझे इंटरेस्ट आया एयरलाइंस में. थैंक यू. Good afternoon, sir and ma'am. I am Rita Gobali. I am from Diglipur. I am so excited to this. Thank you. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा है. फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेज में गई हूँ. एक्चुअली मुझे एविएशन में ज्वाइन करने का बहुत साल पहले से मेरा प्लान था. हैदराबाद में भी मैंने बात की थी 6 साल पहले. फिर शादी होने के बाद फिर मेरा ऐसे ड्रॉप हो गया था. तो फिर मुझे अभी फिर मैं विशाखापट्टनम से वापस अंडमान आई हूँ. तो मुझे चांस मिला एविएशन में ज्वाइन करने का. तो मैं बहुत खुश हूँ एविएशन में ज्वाइन करके. थैंक यू. Good afternoon everyone, myself K. Pravali and I am super excited and happy to join Speedwings Academy Aviation and I am recently completed my education. Thank you. Good afternoon everyone, my name is Lognagi. I am happy to join Speedwings. जो कि स्टाफ है और मिस्टर कार्तिक जो कि पैसेंजर है. तो आप देखते हैं आदित्य और कार्तिक दिखाएंगे कि जब एक पैसेंजर रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स लेकर जाते हैं तो उस सिचुएशन को किस तरीका से हैंडल करते हैं. ध्यान से देखिएगा. हेलो, नमस्कार सर. नमस्कार सर, प्लीज गिव योर टिकट प्लीज. Sir, please give your ID card. Sir, please drop your luggage here. Sir, is there any restricted articles like power bank, any liquids or copra that is dry coconut in your bag, sir? Dry coconut? Yeah, copra, sir. I have a piece of copra in my bag. So, sir, you have to remove from your bag, sir, because it is strictly prohibited. Okay, no issue. I will shift it to my hand luggage. So sorry, sir. आप इसे अपने हैंड बैगेज में लेके नहीं जा सकते सर, क्योंकि स्ट्रिक्टली बैंड है ऑन बोर्ड. सॉरी सर, एक्चुअली मैं अपनी माँ के लिए ले जा रहा हूँ. So sorry sir, इसमें हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते. आपको इसे हटाना ही होगा. Is there any other way to take it? No sir, sorry sir. You have to remove it. So sorry sir. Okay, no issue. So sir, here is a boarding pass and please proceed to security check. Have a happy journey sir. Thank you. फ्लाइट मिस कर देते हैं तो उस सिचुएशन को किस तरीका से हैंडल करते हैं. Hello ma'am. Hello sir. Please may I have your ticket? Yes sir. Thank you ma'am. Ma'am, your flight is already departed. Why sir? Back to yes sir. मैम फ्लाइट एग्जैक्टली 11 o'clock को था और ऑलरेडी बोर्डिंग क्लोज हो चुका है मैम. सर ट्रैफिक इशू था तो मेरा तो गलती नहीं है सर. हम समझ सकते हैं मैम, बट आपको टिकट के पीछे लिखा रहता है कि 2 hours पहले आपको एयरपोर्ट में रिपोर्ट करना चाहिए मैम. सर बट मैं तो बराबर टाइम पे आई ना, तो आप अरेंज कर सकते कुछ. नो मैम, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आप अपना नेक्स्ट टिकट लेके ही जा सकते हैं. सर आप अपने स्टाफ से बात करिए. No, ma'am. इसी फ्लाइट में जाना है क्योंकि काम है सर इसलिए. सॉरी मैम, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं मैम. तो होगा ना सर. कुछ नहीं है मैम, आप नेक्स्ट फ्लाइट के टिकट बुक करके उसका फुल फीस पे करके जा सकते हैं. तो मेरा तो ये पैसा फिर वेस्ट हो जाएगा ना सर. तो आपको जल्दी आना चाहिए मैम, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते मैम. सर सॉरी. मेरा तो गलती नहीं था, ट्रैफिक का इशू था, तो मैं क्या करूँ. हम समझ सकते हैं मैम, आप नेक्स्ट फ्लाइट बुक करके जा सकते हैं मैम. बट नहीं सर, मुझे इसी फ्लाइट में जाना है, तो आप अपने मैनेजर से बात करिए या किसी से बात करिए, वरना मैं आपके ऊपर कंप्लेंट करूँगी. ठीक है मैम, तो अकॉर्डिंग टू अवर एयरलाइंस नॉर्म आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि जो पैसेंजर फ्लाइट मिस कर देते हैं उसे बस एक एक्स्ट्रा पेनल्टी फीस पे करना होगा. उसके बाद उसको उसका टिकट जो है नेक्स्ट फ्लाइट में शिफ्ट कर दिया जाएगा. पेनल्टी के लिए भी पैसे नहीं है सर. मैम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते मैम, सॉरी. कुछ और ऑप्शन नहीं है मैम, सॉरी. ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ आपको. नेक्स्ट फ्लाइट कितने बजेगा? 2 hours बाद है मैम. 2 hours बाद.
वेट मैं बताती हूँ चेक करके। ओके सर, बुक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू मैम। ये लीजिए आपका टिकट। आप प्लीज टिकट काउंटर में जा सकते हैं अपना आईडी का। थैंक यू मैम, हैव अ सेफ जर्नी। ओके सर, थैंक यू। हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर मिस्टर सूरज जो कि पैसेंजर है और मिस प्रिया जो कि एक स्टाफ है। इसमें सूरज और प्रिया दिखाएंगे कि जब एक पैसेंजर का बैग ओवरवेट हो जाता है तो किस तरीका से हैंडल करते हैं। नमस्ते सर। Yes, sure. So as I can see that you are carrying extra baggage of 2 kg, so you have to pay for the 2 kg, sir. Are you sure? Yes, sir. मैंने तो घर में चेक किया था। No, sir, you are carrying 2 kg extra baggage, sir. You have to pay for the 2 kg. Okay, try to adjust it. No, sir, we can't adjust, sir. You have to pay for the 2 kg, sir. Is there any other option? No, sir, you have to pay for this 2 kg bag. Please, ma'am, try to adjust it. Sorry, sir, हम नहीं adjust कर सकते. आपको pay करना होगा 2 kg, sir. Adjust नहीं होगा। यार, मेरा लेट। Okay, call your manager. I want to talk to him. Sir, manager we can't help you, sir. Manager we can't help you, sir. You have to pay for 2 kg. Why? It's not my problem. Sir, you have to pay, sir. It's our company rules. Okay, is there any other option? Sir, you're carrying any hand baggage? Yeah, I have one. Sir, please drop here. Okay. As I can see, sir, your hand baggage is underweight, so you can shift your 2 kg to your handbag, sir. Is that okay, sir? Sounds good. But will it work? Yes, sir. Okay. May I shift? Thank you for understanding, sir. Okay. Here is your boarding pass. Please proceed to the security checking. Thank you. Happy journey. Thank you. Thank you. Hi everyone, myself शाइस्ता खान। स्पीडविंग्स एविएशन एकेडमी में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपना स्किल्स इन्हांस किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत नॉलेज मिला है एयरपोर्ट एविएशन के बारे में। थैंक्स टू द ग्रेट फैकल्टीज मिस रुचि मैम, सर अब्रार सर एंड डायरेक्टर ऑफ स्पीडविंग्स एविएशन एकेडमी मिस्टर आर.के. दास सर एंड ताप्ती दास मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। हाय, गुड आफ्टरनून ऑल। तो आप सभी को आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बोलिए जोर से। बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप सब यहाँ पर आए, टाइम निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को आपने ही सक्सेसफुल बनाया। आपका प्रेजेंस हमें सक्सेसफुल बनाता है। तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे स्पीडविंग्स के डायरेक्टर सर मिस्टर आर.के. दास सर एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पीडविंग्स मिसेस ताप्ती मैम, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने फ्रेशर्स को इतना अच्छा से ग्रैंड से वेलकम कर सके। तो थैंक यू सो मच मैम। तो उसके बाद मैं अपने सीनियर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, हमारी जो फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में 3 दिन में इतना अच्छा सा अरेंजमेंट किया। थैंक यू सो मच। तो अब मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी जिनके लिए प्रोग्राम रखा गया, हमारे न्यू स्टूडेंट्स फ्रेशर्स। थैंक यू, आप सभी आए और हमारे इस प्रोग्राम को आपके द्वारा ही सक्सेसफुल मिला है। और उसके बाद मैं हमारे दो जो मेन सह कप्तान हैं मिसेस रुचि मैम एंड मिस्टर सैयद सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा से मैनेज किया, उनको इतना अच्छा से हेल्प किया ये सारी प्रोग्राम्स को करने के लिए। तो जिनकी वजह से हमारा आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और भी लोगों को पता चलेगा कि स्पीडविंग्स भी ऐसा इंस्टीट्यूट है अंडमान में जो गवर्नमेंट का तरफ से अप्रूव्ड है, आईटा का कोर्सेस होता है।
तो मैं हमारे जितने भी मीडिया पर्सन्स आए हैं उनको सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं मिस्टर यामीन सर फ्रॉम न्यूज़ अंडमान 24/7 को थैंक यू बोलूँगी। उसके बाद मिस्टर अनूप दत्ता सर फ्रॉम न्यूज़ संघर्ष अंडमान, मिस्टर दीपक फ्रॉम अंडमान सिखा एंड मिस्टर महेश फ्रॉम आइलैंड न्यूज़ को थैंक यू कहना चाहूँगी आप सभी को कि आप सभी अपना इतना कीमती समय निकाल कर आप आए, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं होता है कभी, तो आप टाइम निकाल कर आए और हमारे इस प्रोग्राम को देखा आपने। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ग्रीलेक्स के सारे स्टाफ्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल। और हमारे न्यू स्टूडेंट्स को मैं एक अपडेट देना चाहूँगी। जैसा हमने बोला था मंडे से आपका क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे एक दिन के लिए सभी स्टूडेंट्स का क्लास मॉर्निंग 9 to 1 का होगा, जिसमें हम आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो आप सभी को मंडे एक दिन के लिए 9 to 1 के बीच में 9 बजे सुबह आना होगा। उसके बाद ट्यूसडे से आपका जो टाइमिंग है उसमें आपका क्लास होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके जो एक्सपीरियंस है वो कैसे रहे आप? मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा सर। मैं यहाँ पर 6 महीने से पढ़ रही हूँ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलता है सर। पूरे पढ़ाई के दौरान, इस एक्टिविटीज़ के दौरान किस किस पे, कौन कौन से विषय पे एम्फेसाइज किया जाता है, फोकस किया जाता है? मेनली ग्राउंड स्टाफ और पैसेंजर को कैसे हैंडल करना है, वैसे सब चीज़। यानी कि जो कस्टमर या पैसेंजर होते हैं और जो एम्प्लॉई हैं उनके बीच में जो व्यवहार और तालमेल है उस पर फोकस होता है। जी सर, वैसे ही होते हैं। उस पे क्या? और कैसे हमें पोलाइट और कामनेस लाना है, जितने भी रूट पैसेंजर भी हो तो हमें मतलब पोलाइट वे में बिहेव करना है, वही सब सिखाते हैं। और आपके यहाँ जो फैकल्टीज हैं वो कैसे सिखा रहे हैं? बहुत बढ़िया टीचिंग है सर, हम बहुत एंजॉय करके पढ़ते हैं। हमारा फैकल्टी रुचि मैम और अबरार सर बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। और ये जो तेज गति की पंख है, स्पीड विंग, ये अब आपके अंडमान निकोबार के द्वारे पे आ गई है, यानी कि चौखट पे। इससे आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा? हमें कई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सर। अभी हम लोग बाहर भी जाएंगे तो इसमें मतलब अच्छा रहेगा सर हमें। क्योंकि यहाँ के बच्चों को पहले मेनलाइन बहुत खर्चीला होता था पढ़ाई, और आपको घर से बाहर जाना पड़ता था। अब मेरा वही पूछना है कि अब आपके दरवाजे पे है, यानी कि अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर पे, सिटी में, तो इसमें फ़ायदा क्या है? हम लोग घर से रह के ही पढ़ सकते हैं सर, वो एक आराम हो गया। और इतना अच्छा सर्टिफिकेशन आरके दास सर, परिवार के आंखों के सामने। जी सर, वही। जी बिल्कुल, परिवार को देखते हुए। जी सर। और आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? मेरा तजुर्बा ये कह रहा है सर कि मेरे को कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम था। जब से मैं 6 महीने से कोर्स कर रही हूँ, मेरे कम्युनिकेशन में बहुत सुधार आया है और फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से पढ़ाते कि लगता नहीं है कि क्लासेस चल रहा है, ऐसे एकदम इंजॉयमेंट होके पढ़ते हैं। और सर्टिफिकेशन का बात किया जाए तो सर सर्टिफिकेशन तो बहुत अच्छा है। हमें कुछ भी अगर ये करना रहेगा तो मुझे बाहर जाके करना था, मुझे करना था ये, तो मैं बाहर जाके करूँगी सोच रही थी। बट जब अंडमान में ये चीज़ शुरू हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आरके दास सर जो अपॉर्चुनिटी लेके आए वो बेस्ट है, और इतना अच्छा फैकल्टी हमें मिला है कि हम बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। जी, आप बताइए कि अभी तक आप में, पहले जब आप ज्वाइन किए थे नए और अब जो है 6 महीने बाद, आपके अपने भीतर कितने आपके परिवर्तन आपको लगा? सर जैसे आज मैंने जैसे परफॉर्मेंस दिया, जैसे कमेंट्री किया, पहले मैं स्टेज में आने से बहुत डर रहा था, बट यहाँ पे आने रुचि मैम हमारी जो बहुत हेल्प करती है हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ सर भी हमारे डेली क्लास में सेमिनार प्लस हम लोग इंट्रोडक्शन डेली होता है। वीक में एक बार हमारा ऐसा पैसेंजर हैंडलिंग टाइप बातचीत होता है, देन कभी कभी हमारे विजुअल क्लास वगैरह भी होता है जी। और प्लस हमें कम्युनिकेशन भी, आप जैसे आप पूछ रहे, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग डर रहे थे, नर्वस रहे, बट अब वो नर्वसनेस चला गया। तो जैसा आप भी जो चाहते हैं अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यहाँ आ सकते हैं। चलिए, और यही तजुर्बा आपको भी हुआ? जी सर, आपको भी? जी। चलिए, तो यहाँ पे जो तारीफ़ें की जा रही है वो तारीफ़ हो रही है यहाँ पे रुचि मैम की, तो ज़रा हम उनसे बात करें।
हाँ नमस्कार जी। यहाँ बच्चे जो हैं फैकल्टी के तौर पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आप सिखा रही हैं, इसकी बड़ी तारीफ हो रही है। और किस तरीके के ट्रेनिंग आप आमतौर पे कराती हैं? मैं यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग करवा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के तौर पे करवा रही हूँ। मैं 7 साल कुवैत एयरवेज़ के साथ एज अ कैबिन क्रू मैंने काम किया है। तो वहाँ उन 7 सालों में जो भी मैंने सीखा है, मैं चाहती हूँ उनको एटलीस्ट उन सब चीज़ों का एक एक्सपीरियंस मिले, ताकि उनको पता चले कि ये इंडस्ट्री क्या करवाती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस इंडस्ट्री में, ताकि उन लोगों को वो सारी चीज़ें एडवांस में मिली जो मुझे नहीं मिली थी जब मैंने कुवैत एयरवेज़ ज्वाइन किया था। तो मैं चाहती हूँ वो लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाएँ। जो मुश्किलों का सामना मैंने किया था वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनको वो सब ना करना पड़े। बस उतना ही। बिल्कुल, ये कह सकते हैं बच्चे जिस तरीके से फीडबैक दे रहे हैं और कह रहे हैं और तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि रुचि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो रुचि मैम के एक्सपीरियंस जो वो सिखा रही हैं, उसमें अब स्टूडेंट्स को रुचि आने लग गया है। मुझे ऐसा लगता है वो तो बच्चे हैं, वो तो चढ़ाएंगे ही हम फैकल्टी को चने के झाड़ पे। पर मैं अभी जितना कर सकती हूँ अपने हिसाब से मैं कर रही हूँ। आई विल गिव माय बेस्ट। बाकी मैं सारे बच्चों को अपना यही बोलना चाहूँगी कि वो अपना जो भी यहाँ से सिखा रहे हैं वो आगे उसको और ज़्यादा एनहांस करें और दूसरों को भी हेल्प करते रहें। बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बच्चों को और बेहतर शिक्षा दें। चलिए अब हम यहाँ बात करेंगे, एक और फैकल्टी है। हाँ जी, आप ये बताएं कि आप कैसे ट्रेन कर रहे हैं, किस क्षेत्र में आप इस वक्त में ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को? सर मेनली हम ग्राउंड हैंडलिंग पार्ट में ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, जो कि बच्चे जब एक पैसेंजर को हैंडल करेंगे, एक स्टाफ एयरलाइन के स्टाफ जब पैसेंजर को हैंडल करते हैं तो वो कैसे हैंडल करते हैं। देखिए सिर्फ लोग पैसेंजर हमारे ऊपर भड़कते हैं, पैसेंजर्स को नहीं पता होता है कि उस समय में क्या किया जाए। मान लीजिए अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाता है तो उन्हें जो स्टाफ होते हैं वो मेंटली कैसे प्रिपेयर होंगे, वो कैसे पैसेंजर को हैंडल करेंगे, वो पैसेंजर्स को कैसे अपने बातों को समझाएंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। लेकिन उस ह्यूमन नेचर के अंदर में हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उस सिनेरियो में हम लोग कंपनी और एयरलाइंस के रेगुलेशंस को कंसिडर करके कैसे हम लोग उस चीज़ को हैंडल करेंगे, पैसेंजर को हम लोग कैसे सर्व करेंगे, प्रॉपर नॉलेज पास ऑन करेंगे। और इसके साथ साथ में सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि देखिए एक एयरपोर्ट एक ऐसा स्टराइल एरिया है जहाँ पे हम लोग कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी के साथ साथ सेफ्टी, हमें दोनों चीज़ को मायने रखना होता है कि हम लोग कैसे उसे एहतियात करें। तो ये सभी चीज़ हम लोग स्टूडेंट्स को बिट बाय बिट छोटे छोटे चीज़ों के साथ साथ हम पूरे इलैबोरेटली लास्ट तक जाते हैं बच्चों को समझाते हैं। यानी कि विपरीत परिस्थिति में संयम अनुशासन को रखते हुए, तालमेल दोनों के बीच में बनाते हुए उस परिस्थिति को कैसे टैकल किया जाए। एग्जैक्टली हमें कैसे हैंडल करना है, क्योंकि देखिए नॉर्मल एक सिटीजन, नॉर्मल एक लोग ऐसे हैंडल नहीं कर सकते पैसेंजर्स को, वो उल्टा भड़क जाएंगे, ह्यूमन नेचर वही होता है। लेकिन हमें जो है एक एयरलाइन स्टाफ को प्रॉपर उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, एज वेल एज हमारे अंदर वो संयम रहनी चाहिए कि हाँ हम पैसेंजर्स को कैसे डील करें, हम पैसेंजर्स को कैसे समझाएं और वो पैसेंजर हमारे ऊपर भड़के बिना, और इसके साथ साथ पैसेंजर का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। जो लोग हमारे पास एक आसरा लेकर आते हैं उनका प्रॉब्लम सॉर्ट हो, है ना। तो वो उस चीज़ का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर प्रोफेशनली कि हमें कैसे लोगों को समझाना होता है, कैसे हमें लोगों को बताना होता है। चलिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे जो स्पीड विंग्स हैं, स्पीड विंग्स के डायरेक्टर आर के दास सर जो हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो आपके दिमाग में ये सोच आई कि स्पीड विंग्स आईएटा रिकॉग्नाइज्ड मिनिस्ट्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और एविएशंस के क्षेत्र में अंडमान में ये एक शुरुआत है, एक आगे चल के रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, या बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अब मिलने जा रही है। ये विचार आपके मन में किस तरीके से आए? एक्चुअली मैं देख रहा था एक अंडमान निकोबार में बच्चे जो है एक सारा चीज पढ़ने मेलन जा रहे हैं, आइदर इन कोई ग्रेजुएशन करने जा रहा है, कोई डिप्लोमा, कोई भी कुछ करने जा रहा है। तो विदिन मैंने देखा है धीरे धीरे एयरलाइंस के इंडस्ट्री इतना बढ़ोतरी जब जा रहा है, जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना बूस्टिंग हो रहा है। ये एयरपोर्ट पहले एक छोटा सा एयरपोर्ट था पहले पोबलर में, आज एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। इतना अच्छा जो है जिसका जो पैसेंजर का कैपेसिटी है ईयरली 50 lakhs। तो मैंने देखा है बच्चों लोग जो मेनलैंड जो क्यों जा रहे हैं एविएशन करने के लिए, और करने का बाद भी अंडमान में ऐसे ही बैठा रहे, कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने करीब 1 साल पहले सोच लिया इसका बारे में कुछ इसके ऊपर वर्कआउट करें। तो मैंने दिल्ली विजिट किया, दिल्ली से लेकर आपका ये बेंगलोर है, चेन्नई है, मुंबई है, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट विजिट किया। मुझे लगा नहीं कोई ऐसा कोई रिकॉग्नाइज, ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्टिफाइड आईटा अप्रूव मुझे ऐसा मिला नहीं। तो
तो मैंने देखा ये गूगल में सर्च कर फिर देखो कैलूर ब्रांच जो है केरला में कोचीन में स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी जो आईटा का 30 साल से इसका ट्रेनिंग ऑथराइज स्कूल है और उसका अंडर में जो DGR का जो ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। DGR मतलब डेंजरस गुड रेगुलेशन जो है अंडर DGCA का अप्रूव्ड है। जो DGR ट्रेनिंग जो एवरी एम्प्लॉय जो है आज एयरलाइंस में काम कर रहे हैं उनको 2-2 साल में उसको रिन्यूअल करना पड़ता है, तो वो चीज़ हमारे बच्चों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ये जो करिकुलम है मैंने 1 ईयर कोर्स का ही प्लान किया, जैसा डिप्लोमा इन एयरलाइन एयरपोर्ट मैनेजमेंट और कैबिन क्रू भी स्टार्ट किया अभी मैंने। तो ये जो बच्चों को अंडमान निकोबार में जो है जॉब मिलने का बहुत चांसेस है। नॉट ओनली अंडमान निकोबार आइलैंड, इसका जो एयरलाइंस का जो एविएशन का जो जॉब मिलने का ऑल ओवर इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलेंगे। दिस इज आईटा सर्टिफाइड है। आईटा का जो इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन जो जिसका हेड ऑफिस होता है मॉन्ट्रियल कनाडा में, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो बच्चों को ग्रूमिंग बनाना, बच्चों को इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल बनाना, ट्रेन करना, इनको एयरपोर्ट का बारे में बताना, पैसेंजर को कैसे हैंडल करना, डीजे डेंजरस कुछ कैसे करना, कैसा कैबिन कौन सा सामान जाएंगे, ये सारा का सारा मॉड्यूल ट्रेनिंग है। 2 सेमेस्टर के एग्जाम है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड। इसका जो एडमिशन का स्टार्टिंग हमारा हम लोग स्टार्ट किया था दिसंबर में। जो अभी का जो बैच चला जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक बैच है। दूसरा बैच अभी स्टार्ट किया जो जुलाई से लेकर 2024 का 2025 का जुलाई तक होगा। तो ये साल में 2 बार एडमिशन होगा, एक 1 ईयर का और एक 6 मंथ का भी कैबिन क्रू का है। ये दोनों के खर्चे कैसे पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ अगर मिडिल क्लास फैमिली बच्चों को कराना चाहती है तो सबसे पहले तो उनके सामने आती है फाइनेंस। तो इसके कॉस्ट कितने पड़ जाते हैं 6 महीने और 1 साल वाले कोर्स में? 6 महीना का कोर्स के लिए करीब करीब आईटा सर्टिफिकेट मिलेगा उनको, तो उनका कॉस्ट 80,000 रुपीज़ पड़ेगा। और 1 साल का कोर्स के लिए 1,65,000 है। तो इनको 1,65,000 एक बच्चों को 2 आईटा का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक एमईडीएस का सर्टिफिकेट मिलेगा और आपके एक एनईजी सर्टिफिकेट मिलेंगे और 1 साल का एक सर्टिफिकेट मिलेंगे। बल्कि दोनों एयरपोर्ट का जो है यहाँ का एयरपोर्ट का भी ट्रेनिंग का यहाँ पे हम लोग इंटर्नशिप का प्लान किया है और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी प्लान किया, वहाँ पे भी 2-2 इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा बच्चों को। तो करीब करीब स्टूडेंट विल गेट बंडल ऑफ सर्टिफिकेट और उनको ग्रूमिंग, उनको पर्सनैलिटी हो जाएगा। तो आफ्टर एट द टाइम अब जो बच्चा इंटरव्यू देने जाएंगे उनको मुझे लगता है उनको अच्छा से उनको टैलेंट हो जाएगा और उनको जॉब पर ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है। ये मैंने देख रहे हैं यहाँ पे जो बच्चा काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है सारा एयरपोर्ट में, मैं मेलैंड मैंने चेक किया मैंने, उनको इस तरह का DGR का ट्रेनिंग भी नहीं है बल्कि आईटा का सर्टिफिकेट भी नहीं था। तो धीरे धीरे ये जो 5 साल में जो एयरलाइंस इंडस्ट्री इतना बढ़ रहा है पूरे इंडिया में, उसका जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फ्रूटफुल, यहाँ पे बच्चों को एक अच्छा एक एम्प्लॉय मिल सकता है, यहाँ पे उनका अपना लाइफ को स्टेबिलिटी कर सकता है। बहुत बच्चा का जो बड़ा होने के टाइम बोलता है मुझे एयर होस्टेस बनना है, मुझे एयरपोर्ट में एम्प्लॉय बन के काम करना, वो जो चीज़ है उनका आज आने वाले टाइम में वो फुलफिल होने का संभावना ज़्यादा है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एकेडमी को शुभकामनाएं और आने वाले समय काल में हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों को पंख लगे और वो इस एविएशन इंडस्ट्री में वो अपने आशा की और उम्मीद की उड़ान भरे। ये उम्मीद करेंगे हम आपके साथ में।